तो बेसिक क्या करने से हैक करने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगा। 48% of India-based companies experienced 10 or more cyber attacks in 2022. The country's hackers make headlines around the world for thefts and politically motivated cyber attacks. 81 करोड़ से ज्यादा भारतीय आधार यूजर्स के डेटा लीक हो चुके हैं। U.S. Senate Intelligence Committee Chair Mark Warner going so far as to call it the worst telecom hack in the nation's history. The hack was also so big in scope that experts still do not have an idea of the scale of the intrusion. कोई हैक करने की कोशिश करता है तो उसको एनक्रिप्टेड डाटा मिलता है तो उसको वो समझ में नहीं आएगा. इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू क्रैक. इफ यू आर ट्रांसफरिंग योर डाटा इन इनसिक्योर फॉर्मेट लाइक नॉर्मल HTTP प्रोटोकॉल में जाते हो तो हैकर्स को दिख जाता है डाटा तो वो हैक कर सकते हैं. सर्वर के अंदर जो डेटा होता है, ठीक है, और बैकअप डेटा नहीं है. इंटरनेट में आपका साइट लोगों को दिखने के लिए खाली आपका सर्वर और उसका जो भी पब्लिश्ड कोड वो चाहिए. जितना भी ये काइंड ऑफ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म. ओके, डेवलपमेंट पार्ट व्हिच कैन बी ऑन योर प्रीमाइस, नॉट नेसेसरी टू ऑन इंटरनेट. मान लीजिए मैं एक सर्विस स्टार्ट किया, डेवलपर उसको अंदर कोड किया, ठीक है, सडनली छोड़ के चल गया. ओके, मुझे क्यों कुछ पता ही नहीं है. अभी एक सर्वर में टोटल एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है. अभी मान लीजिए दूसरा सर्वर में मैं चेंज होने के लिए जा रहा हूँ. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल्सो. किसी के एप्लीकेशन के अंदर 1 लाख डेटा आ गया तो 1 लाख डेटा उसके अंदर है, कस्टमर का डेटा, और वो लाइव है. अभी जो सर्च करने का टाइम स्लो क्यों हो जाता है? इतना सारा डेटा होने की वजह से, पर डेटा के कहाँ पे रखना चाहिए. The programmer must know that whatever program he has write or written for search, it must be using the index of the database. इंडेक्स यूज़ करेगा तो सर्च फास्टर रहेगा. इंडेक्स नहीं यूज़ होता है तो स्लो होगा. अभी आप पूछेंगे भाई सर्वर क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं. करेक्ट. वो कहाँ होता है, कैसे होता है, वो किधर से मिलेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर ये सब आपको पहले मालूम नहीं होगा. व्हाट इज सर्वर, ठीक है. तो ये एकदम जनरल क्वेश्चन है, बट IT प्रोफेशनल उसके पास बहुत इजी है, ठीक है. बट इन जनरल वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है. Basic terms, if I explain what exactly a server is, ओके. server is nothing but a system. ओके. वो system जो which is ready to serve you for a purpose. ओके. Okay. So system होने से this is a computer system which is meant to operate, ओके. means act as a server. When I say act as a server means if any person who is taking a role, playing a role of a particular model, means Okay. he is acting as that role. ओके. So similarly, a system. There are all computer systems, whichever systems you pick up, this has the capability to act as a server. ओके. So server क्या होगा? When a server is a system which is ready to serve you for a purpose. ओके. Various purpose के लिए various server you can set up, and these servers will give you the output based on the request. Okay. When I say that somebody is acting as a server means I expect that if I give a request to him, he will serve me. Okay. जैसे आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो you are finding somebody, some waiter is there, he is going to serve you. Similarly, he is basically a server to you. Okay. आप कुछ रिक्वेस्ट करते हैं वो आपको आके देता है. हाँ. तो वही होता है बेसिक layman language. If you want to understand what exactly a server is, here instead of a person, you are having a system, computer system, which is nothing but a hardware object or a device, which is powered by electricity and battery, and it is connected to internet to gain all the
information it requires, Okay. and how to operate itself, means how it will work. So it will work and make it ready. Okay. Usually, like any other computer system, it has an operating system which boots it up and starts it, and it is ready to work. Now on that system, if you want to make it as a server, act as a server, then you have to install or load or set up a software which will act as a server. So server has two parts. One is hardware and it is software. Software. Okay. So hardware is the kind of objects which will do all your processing, core processing, electronic Okay. components like chips, processing units, memory, all these are which are there in the part of a system which we call as hardware. Okay. And on top of that, we load or install or set up a software which will act as a server, means which is ready to serve anything I request for. Okay. So I'll term it as this is a server. If I give a request to it, and it will give me output. So there is a certain standard process how to give the request and how the server will give me the output. Output. Like you have to ask the server in specific format, specific request, specific method, and the server will also give you the same response in a selected format or selected data output. So depending on various purposes of activity or work, engineers have already prepared or written many kind of server softwares for various activities. Similarly, these server softwares usually run on a hardware. Hardware. The more powerful the server is, you have to have a more computing resources and you need a more robust hardware. Simple mobile phone is also can act as a server, okay, which also acts. And simple any system you pick up, you can also load a server software and it will act as a server. And internet is nothing but a network of servers. Again, the users or the people, common people, connect to internet. Internet means they connect to an internet server. They put their request that I need this, I need that, and they get the output in this thing. And they access basically the internet servers, which we call as web servers. They are accessed by web browsers, means browsers are client. Okay. Okay. So this is one type of server. But there are many types of server. Okay. This is a web server which is used primarily for internet connectivity, internet access. But there are many types of server for various applications. Like there is data applications, database servers are there. Many specific applications are there. People have developed their own servers for specific application. Okay. Okay. So these are called application servers, these are web servers, these are database servers. So typically, if you categorize, you will find broadly web servers, database servers and application servers. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इसको मतलब क्या है? Hardware is any physical component like electronic components which are driven by electricity or power, and electrical or electronic components, which electronic components run on very micro voltage and current, Okay. whereas electric components run with a high voltage. Okay, there is a difference. Electronic components require very less power. Okay. Okay, my nano power or these things. So electronic components are hardware. These are basically hardware components. Hardware components physically they don't have their own life. Only when they are given a electricity or electric current, they become activate. Software is nothing but a sequence of signals which are written in a binary format and stored in a particular coding pattern. Okay. And they also gets activated when they are activated or energized by a thin source of electric current which passes through the hardware components and then activates, and it's like the intelligence, whether it is pre-written or
driven or derived, Okay. it doesn't matter, but it is a software is, you can say, intelligent. Also resource management server ये क्या है? Okay. Resource management server is, that is also a kind of application server. Okay. There is a server which manages the resources. Okay. That resources means, suppose you have a activity which is driven by application, and you have set up an application server for that. Do that activity, you have application server. That application has many parts. Okay. It has to do X, Y, Z, A, B, C, D, lot of activities. And for every activity you require a resource, means something or somebody or some entity which will do certain actions Okay. and give you the result. So a server may have many resources Okay. to do various activities within that. So, and to manage those resources means organize them, connect them, and put the right actions, who will do what and when they will do, how the result will be displayed or presented, how the request will be taken. So these are various components. Each server will have some components Okay. which will be defined to do specific activities, and these are activities are done by various server resources, and they are called by the server system as and when required based on the activity. क्लाइंट सर्वर मॉडल ये एक बात सुनने के लिए मिलता है. Client server model is nothing but where you have a server, Okay. and to access the server means talk to that server, you need a separate application which acts as a interface, means like a door to the server. Means you have to, if you have to access that server, you have to go through this gateway. This is the door or windows Okay. to a particular pool or a pool of activity. Server will having lot of things to do. If you have to do, you have to go through a door or gate, and that gate acts as a client. अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक एक मॉडल तो तैयार होगा. जो भी एप्लीकेशंस होगा, वेरियस एप्लीकेशन के जो सर्वर में रन होंगे, एंड इफ यू वांट टू एक्सेस दोज एप्लीकेशंस, यू नीड टू हैव ए क्लाइंट, मींस यू नीड टू हैव ए डोर और विंडोज टू मेक एन एंट्री टू दैट सर्वर, and then you can ask what you want, what you require. The server will take your request, they will do the processing, and they will give it back to the client. Means Right. as a human being, you need a client to make an entry or and ask questions and query to the server and get your output. So that is called a client. So we call it as a client. जो डेटा सेंटर के मैटर में थोड़ा सा कुछ नॉलेज. Data centers started long time back. Okay. Data centers are like a big group of computers, Okay. server centers. Means one center will have a huge infrastructure or facility to host or to keep up the servers. Okay. Basically, a data center is designed and built to keep or upkeep the servers where they are all powered up, the hardware is set up, power is given to the hardware, and they act as servers. Means servers are stored, you can say. You can say that it's like a bank of servers, okay? So that people, if whoever needs a server, they can just go to the data center, and data center can give them a server, and data center will also give them, this is your server, and you can access the server by this client. So usually clients are available at the user systems or standard systems, clients will be available. The data center servers can be accessed by connecting to the respective data center network through the clients. सर्वर रिगार्डिंग और कुछ वैल्यूएबल कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप कुछ शेयर करना चाहता हूँ सर. तो जैसे हमने बताया आपको कि सर्वर एक सिस्टम है जिसमें आप कुछ भी डाटा रखें या एप्लीकेशन रखें, वो सर्व करेगा आपको एक क्लाइंट को. अभी आपका जो सर्वर है, हाँ. उसको कौन सा क्लाइंट कनेक्ट करेगा, कितने क्लाइंट कनेक्ट करेंगे, कैसे कनेक्ट करें, उसका भी एक प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है. ओके. अभी टू कनेक्ट टू द सर्वर यू हैव ए प्रोटोकॉल.
various protocols have been defined for various application servers. How a client will connect to the servers and what protocol they will use. So different application servers, different servers have their own protocols. Okay. So now these servers you can install in one specific location in a specific network. Means the server is only on your office or premise. It can be accessed by the clients by the specified protocol within the network. The network means computer network connected by a Ethernet cable or Wi-Fi cable or LAN within that premises. And each servers, like I said, every server is designated by a name. And they have a signified, they have a number also, they are assigned a number. And every servers which are connected to internet, they are given a specific IP address which we call internet protocol address, because servers which are connected to internet, they have to follow a internet protocol. So internet protocol mandates the servers to have a internet IP address. So that IP address is a string of numbers. And that is already defined by internet INA. One organization is there who defines the IP addresses, which allocates the IP addresses to a bunch of IP service providers. It is categorized on various category segments and assigned internationally, country-wise. And then within the country, whoever has the internet service providers, they are allocated a bunch of IP addresses which they can distribute to their end users or customers who are maintaining servers. So this is, I am talking about the internet servers. Besides that, if you are having application servers, your own private servers, you can have it within your own network. You can interconnect your servers with the specified protocol within your premises. And if you want to connect your servers to internet, then you have to connect to an internet server. Okay. So if you connect your server to internet server by assigning an IP address, which is an assigned number to a particular server, and connect it to via the internet protocol, then the server is available over the internet to other servers and other clients also. That also you can secure it, restrict it, who can access, who cannot access, but you can make it public. If you are not connecting to internet, then your server is within your own premise, within your own network, and your clients or your users can only access to that server who are within that network. If you want your server to be accessible by public, then you have to take a public assigned IP address and connect it to the internet, then it can be accessed by other public users. In general, जो भी बिजनेस ओनर, स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर इतना काम का अंदर बिजी होता है, तो उसको पास क्या होता है, एक वेबसाइट होता है, एक एप्लीकेशन होता है, और ये दोनों ही ज़्यादातर माइंड में होता है. जो मेरा एक वेबसाइट है और एक एप्लीकेशन वर्क कर रहा है, और जो प्रॉब्लम है उसको रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, वो देख पा रहे हैं. ठीक है. बट टेक्निकली जो चीज़ है, सर्वर क्या, कौन सा सर्वर यूज़ कर रहा है, कौन सा सर्वर यूज़ करना चाहिए, क्या सर्वर का सिक्योरिटी है, डिफरेंट चीज़ है. ठीक है. क्या होता है ना, अभी आपको कोई बोलता है कि आपको एक साइट करना है, आपका बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपको एक वेबसाइट बनाना है, आपको वीडियो पेज बनाना है, वो बनाना है, तो आप वो सब तो बना लेंगे आपके सिस्टम में, लेकिन आपको सबको दिखाने के लिए आपको एक सर्वर लेना है. अभी आप पूछेंगे भाई सर्वर क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं. करेक्ट. वो कहाँ होता है, कैसे होता है, वो किधर से मिलेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर ये सब आपको पहले मालूम नहीं होगा. आपने वेबसाइट बना लिया, ठीक है, आपने लैपटॉप में आपका जो भी बिजनेस था उसके हिसाब से आपने कैटलॉग बना लिया, वेबसाइट पेज भी बंदे को बना के बोल के उसको पैसे दे के बना लिए. अभी आपका सिस्टम में तो वो चल रहा है. अभी आपको चाहिए कि अरे मेरे को तो ये दिख रहा है, लेकिन दूसरों को कैसे दिखेगा. करेक्ट. आपको चाहिए कि जो दुनिया में कोई भी मेरे साइट का
बारे में जानना चाहिए, मैं सर्विस के बनना चाहिए, तो उसको ये सब इंफॉर्मेशन दिखना चाहिए राइट और तुरंत दिखना चाहिए, जल्दी दिखना चाहिए। ऐसे कैसे होगा? राइट तो आपने तो बहुत बढ़िया वीडियो, ऑडियो और प्रेजेंटेशन डाल के एक अच्छा खासा साइट बना लिया, बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत जल्दी भी आ रहा है आपके लोकल सिस्टम में। ठीक, अभी उसको इंटरनेट में देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, वेरी सिंपल बात है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यदि टेक्निकल ज़्यादा जाएंगे, तो इतना ज़्यादा नहीं जानेगा। आपको सिंपल जो भी आपका वेबसाइट बना है वो वेबसाइट है। वेबसाइट क्या होता है ना, एक वेब सर्वर में चलता है। वेब सर्वर में जो भी पेजेस होते हैं, एक एक पेज बना के आप ग्रुप ऑफ पेजेस आपके नाम पे डाल के एक आपका नाम ले लिया। नाम जो दे आपका जो नाम होगा, कंपनी का नाम या कोई भी नाम आपको एक लेना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डोमेन नेम बोलते हैं। वो कौन से डोमेन में होगा, और उसको इंटरनली वो क्या होता है ना, वो एक उसको जो मैंने बोला था सर्वर का एक आईपी एड्रेस होता है, उसको असाइन हो जाता है। राइट, मतलब आप जिस सर्वर में डालेंगे उस सर्वर में ये आपका साइट रहेगा, उसको एक नाम दिया जाएगा, और तब जाके उस नाम को जो भी कॉल करेगा दिखने के लिए, जो लोग इंटरनेट में कनेक्ट करें वो नाम आप उनका क्लाइंट में डालेंगे तो आपका साइट उधर दिख जाएगा। ओके, तभी आपको आपका जो भी साइट है उसको एक वेब सर्वर में डालना है। तो उसको कहाँ मिलेंगे? काफ़ी सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑलरेडी बन गए हैं, और वो लोग भी बैठे हैं अपना सर्वर लेके, वो भी आपको सर्विस दे सकते हैं। मीन्स आपको वो सर्वर पूरा फुल सर्वर तो आपको नहीं चाहिए होगा। वो भी क्या करते हैं ना, वो आपका उनका सर्वर में जैसे आपको एक घर चाहिए, करेक्ट, आप एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाते हैं और उसको बोलते हैं मेरे को एक कमरा चाहिए, या एक होटल में जाते हैं एक रूम चाहिए, 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, इस तरह का वैसे भी होता है। सर्वर वाले क्या करते हैं ना, वो पूरा सर्वर का अपार्टमेंट बना के रखे हैं। करेक्ट, आपको एक छोटा सा कमरा चाहिए, 2 कमरा चाहिए, 3 कमरा चाहिए, बहुत बड़ा जमीन चाहिए, आप उनको बता दीजिए, वो आपको बोलेंगे हाँ ये महीना इतना लगेगा, तो ये एक सर्वर ले लीजिए। उसका जो स्पेस है वो स्टोरेज स्पेस के हिसाब से चलता है। मतलब आपका वो बोलते हैं गीगाबाइट, मेगाबाइट, उसका डिजिटल स्पेस कितना चाहिए आपको। जैसे आपको आप पैसे देते हो तो आपको करेंसी में देते हैं, तो इसके वहाँ पे स्पेस के डिजिटल यूनिट में चलते हैं। आपको कितना स्टोरेज चाहिए, कितना जगह चाहिए आपको, आपका जो भी साइट रखेंगे उसको कितना जगह चाहिए, वो पूछेंगे। आपको 10 GB चाहिए, 1 GB चाहिए। अभी आपको 1 GB क्या है मालूम नहीं है। अभी आपने साइट तो बोला ले, आपके जो साइट का जितना फाइल्स है उसका जो साइज दिखा के आपको पता चलेगा कितना साइज है। करेक्ट, अभी जो बनाया होगा जो आपके सिस्टम में, उनको पता चलेगा कि ये फाइल कितना जगह लेगा उधर रहने के लिए। करेक्ट, अभी आप उतना ही उनको बोले नहीं मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मेरे लिए एक रूम दे दो, उसमें इतना स्पेस चाहिए, 1 GB, 2 GB, 3 GB, वो बोलेगा। उसके हिसाब से वो आपको रेट बोलेगा। मंथली 1 GB का इतना रेट है, 10 GB का इतना रेट है, आप उतना स्पेस दे दो और आपका फाइल उधर डाल दो। आपका डोमेन नेम जो भी है उसको लिंक कर देगा और उसका सर्वर में आपको एक रूम दे देगा। समझ गए? तो उसके बाद आप अपना ब्राउज़र में या क्लाइंट ब्राउज़र जो बोलते हैं, सर्वर का क्लाइंट है, उसमें उस नाम डालिए और वो आपको दिखेगा। मैंने आप इतना इजी से समझा दिया सर्वर का, जो एक ब्रांड नेम जो डोमेन नेम ले रहे हैं, हाँ, और उसको जो सर्वर प्रोवाइडर बहुत सारे कंपनी है, हाँ, तो उसी जगह से पब्लिश करना है। तो एक हो गया। और अभी एक बार पब्लिश होने के बाद आपका कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र के जो इंटरनेट ब्राउज़र क्लाइंट्स हैं, वो इंटरनेट सर्वर को कनेक्ट करेगा, और वो कहाँ पे भी होए इंटरनेट कनेक्ट करके आपका साइट का नेम डाल के वो आपका साइट के कंटेंट देख सकते हैं। अभी और एक चीज़ बात है, जब आप वो कोई भी आपका साइट का नाम डाल के देखेगा, उस टाइम क्या होता है, अंदर में आपका जो फाइल्स सर्वर में आपने रखे हैं वो यूजर का पास डाउनलोड होके आता है, मतलब वो ट्रांसफ़र होता है। तब जाके उसके सिस्टम में वो दिखता है। तो वो कैसे होता है ना, उसका जो आपने फाइल डाला वो फाइल इधर तक वायर ट्रांसफ़र होता है नेटवर्क के थ्रू, जो आपको दिखता नहीं, लेकिन जैसे बिजली का करंट इधर से जाके उधर जाता है, पूरा मतलब सैकड़ों किलोमीटर
कंट्री में पूरा फैल जाता है, इस तरह का वो डाटा भी ऐसे बहुत फास्ट जाता है और दूसरे जितने भी यूजर्स उसको डाउनलोड करते हैं वो दिखता है उनको। तो उसमें उस बीच में क्या होता है, डाटा ट्रांसफ़र होता है इंटरनली। अभी वो कितना डाटा ट्रांसफ़र होता है उसका भी एक मेजरमेंट है, और जो सर्वर बिठाता है, जो सर्वर आपको देता है, वो उसको मेजरमेंट करके रखता है कि आपका सर्वर से कितना डाटा ट्रांसफ़र हुआ, कितना डाटा रिक्वेस्ट आया, तो कितना डाटा ट्रांसफ़र। तो वो आपको जो बिल करेगा और चार्ज करेगा, वो आपको बोलेगा कि आपके जो सर्वर मैंने दिया है, आपके सर्वर में इतना रूम स्पेस लिया आपने, इतना स्टोरेज स्पेस लिया, इतना डाटा ट्रांसफ़र इतना हुआ। तो डाटा ट्रांसफ़र का एक चार्ज लगाएगा आपको, और जितना स्टोरेज लिया उसका चार्ज लगा। ये दो चीज़ वो प्राइमरी चार्ज करेगा। डाटा ट्रांसफ़र कितना जल्दी होता है उसका भी आप उनको पूछ सकते हैं, भाई स्पीड कितना रहता है, वो हिसाब से भी वो देगा। कुछ सर्वर से जो बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करके आपको बैंडविड्थ जल्दी देते हैं, और कुछ सर्वर से जो थोड़ा स्लो कंप्यूटिंग करते हैं, उनका हार्डवेयर थोड़ा पुराना होता है। नए हार्डवेयर में सर्वर है तो अच्छा खासा प्रोसेसिंग होता है, फास्ट होता है, मेमोरी ज़्यादा है तो जल्दी होता है, डाटा ट्रांसफ़र जल्दी होता है। तो आप जब सर्वर लेना चाहते हैं किसी सर्वर प्रोवाइडर से, तो आपको देखना है कि उसका हार्डवेयर का स्पेसिफिकेशन कैसा है, पुराना है या नया है, या स्पीड कितना है उसका डाटा कैसे पता चला कि पुराना है ना वो ले। हाँ, वो आप कुछ टूल्स है जिसमें आप डाल के उसका साइट का कोई भी साइट एक्सेस करके देख सकते हैं। उसका मीटर भी है, बैंडविड्थ मीटर बोलते हैं, उसमें पता चलता है कितना बैंडविड्थ कितना रेट से ट्रांसफ़र होता है वो सर्वर को एक्सेस करने के लिए। तो आपको पता चल जाता है, तो आप उसी हिसाब से देख लीजिए कि मेरा बैंडविड्थ, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डाटा ट्रांसफ़र जो होता है कितना स्पीड से होता है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो आपका साइट जब सारे लोग एक साथ एक्सेस करेंगे तो आपके सर्वर से वो फाइल सारे लोगों को जाएगा, तो उसी टाइम साइमल्टेनियस डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो उसके लिए भी कभी कभी आप देखेंगे कोई बोल रहा है स्लाइड स्लो आ रहा है, धीरे आ रहा है, दिखता नहीं, कभी कभी थोड़ा ट्रैफिक जैसे होता है ना, कंजेशन वैसे हो जाता है। तो ये सब होता है क्योंकि वो जो सर्वर का जो बैंडविड्थ है थोड़ा कम है। तो बैंडविड्थ थोड़ा इंक्रीज करेगा तो पहले से जैसे पाइपलाइन, एक पाइप में डाटा फ्लो हो रहा है और उसको पाइप का विड्थ ज़्यादा है, बड़ा है पाइप है तो बहुत फास्ट जाएगा, स्मॉल पाइप है तो पानी धीरे आएगा, इस तरह का डाटा फ्लो करता है। तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। और एक डाउट है, सर्वर के अंदर जो डेटा होता है, ठीक है, और बैकअप डेटा नहीं है, इन केस वो सर्वर का डेटा बंद हो गया, तो जो रिकवरी करने के लिए वो काम कर पाएगा वो डेटा के लिए, कि फिर नेक्स्ट काम कर पाएगा? देखिए, जो भी डाटा आप कोई भी सर्वर में डालते हैं, मेरा एक माइंड में क्वेश्चन आया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। जो भी डाटा आप सर्वर में डालते हो और उस डाटा का अच्छा प्रैक्टिस है कि एक कॉपी आपके पास रख लो। मैं कैसे रखूँ? मैंने उसको अभी आपके सिस्टम में, लोकल सिस्टम में या किसी स्टोरेज डिवाइस में आप जो डाटा सर्वर में डालते हैं उसका एक कॉपी आप दूसरा किसी सिस्टम में डाल के रख दो, लोकल सिस्टम में, ताकि उसका एक कॉपी आपके पास रहता है। यदि कुछ प्रॉब्लम में, कुछ कार्यवशत वो सर्वर ख़राब हो जाता है या नहीं होता है, तो उसका डाटा को आपका जो वहाँ से फिर सिस्टम से रखा था उससे कॉपी करके ट्रांसफ़र कर दो। अच्छा, मैंने वहाँ से फिर अगर पब्लिश सब कर सकते हैं। करेक्ट, सो यू कैन रिपब्लिश द डाटा। तो ऐसा तो सर बहुत सारा टूल भी है, बहुत सारे टूल्स हैं जो आपका डाटा को कॉपी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर ज़रूरत पड़े तो रीलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। तो वो तो गिटलैब का थ्रू से जो काम करना, जो वो डेटा रखना, वो कितना रिलेबल है, कितना बेटर है? GitLab is just a system okay which facilitates the management of the application data or code, I believe, application and it facilitates the users to synchronize the data with the servers. Like आपका जो सर्वर है उसमें जो डाटा पब्लिश होना है उसको पब्लिश करने के लिए बीच में GitLab बैठता है। आपका 10 यूज़र हैं, 20 यूज़र काम कर रहे हैं, सब लोग एक जगह
जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो जिटलैब में पहले डाल देते हैं, एक जगह वो बोलते हैं एक रिपोजिटरी, मतलब स्टोरेज हो जाता है। फिर जिटलैब से एक पर्सन, जो भी आपका मेन पर्सन होगा, मेन इंचार्ज होगा, वो क्या करेगा, वो एक फाइनल कॉपी सर्वर को पुश करेगा। और all users, let's say 10 users are working on your project and you have made a software and they had pushed everything. They don't push everything directly to the server. They push it to a common first intermediary system which is called a repository, which you can say GitLab is a repository. And GitLab से एक कॉपी लेके, पूरा सबका कॉपी लेके और एक सर्वर में आप पहले टेस्ट भी कर सकते हो कि आपका जो भी सब लोगों ने बनाया है, जितने भी सॉफ्टवेयर है, सबका मिला के, एक का नहीं, सबका मिला के जो भी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है वो ऐसे चलेगा, दिखेगा। वो दिखने के बाद फिर आपका जो फाइनल प्रोडक्शन लेवल वेब सर्वर है इंटरनेट में, उसको आप पब्लिश करोगे। ये जो जिटलैब और जो यूजर सिस्टम, ये सब आपका लोकल प्रेमिस में रहेगा, उसको इंटरनेट कनेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। खाली जिटलैब सर्वर जो इंटरनेट को पुश करेगा, उसको इंटरनेट कनेक्शन देके पुश कर दीजिए। जिटलैब इज जस्ट ए इंटरमीडिएरी रिपोजिटरी। रिपोजिटरी मीन्स स्टोरेज, Okay. where everybody can, all users can push or put their Okay. code. Okay, that code can be uploaded or updated on the server. If your server requires the code to be uploaded, someone who is in charge of the GitLab system will push it to the production or your server, and that will be available on the server. One copy will be available on the server. GitLab inside, it stores all the copies which the users have posted to GitLab. GitLab stores all the versions, revisions, what people have made to the code. Okay. Finally, whoever is the GitLab server manager, he only publishes the final version to the server. The server will be having only one version of your code which is running, but in GitLab will have your all changes and everything of your code within the GitLab system. GitLab is not required to be on the internet for your site. Okay. Okay. रिक्वायरमेंट नहीं है नहीं। इंटरनेट का। इंटरनेट में आपका साइट लोगों को दिखने के लिए खाली आपका सर्वर और उसका जो भी पब्लिश्ड कोड वो चाहिए। GitLab is a kind of a development platform. Okay. डेवलपमेंट पार्ट। Development platform which can be on your premise, not necessarily to be on internet. मान लीजिए मैं एक सर्विस स्टार्ट किया, डेवलपर उसको अंदर कोड किया, ठीक है, सडनली छोड़ के चल गया। Okay. मुझे क्यों कुछ पता ही नहीं है जो एप्लीकेशन का अंदर क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और वो रनिंग है पब्लिश है, जो भी एप्लीकेशन है पब्लिश है, कस्टमर भी उसको अंदर है। तो उस सिचुएशन में मेरा क्या क्या प्रोटेक्ट करना चाहिए था व क्या क्या करना सिक्योरिटी का ज़रूरत था। ऐसा सिनेरियो यदि किसी भी जगह से होगा तो कैसे करके उसको सॉल्व कर सकता है, सॉल्यूशन कैसे लेके आ सकता है? तो ये जो आपने सिनेरियो बताया, दैट मे हैपन naturally, but it is good to follow some project management practices Okay. for any client project or project which you want to publish and serve to on the internet to some people. Okay. because जो भी काम कर रहे हैं, जो डेवलपर हैं, this you can tell them to follow some guidelines or standard, जिसके आधार पर पहले उनको डॉक्यूमेंट बनाना है। ओके, पहले डॉक्यूमेंट है, पहले डॉक्यूमेंट हर प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट, हर प्रोजेक्ट का जो रिक्वायरमेंट बनाने के बाद उनका डिजाइन बनाओ, उनका डॉक्यूमेंट बनाओ, मतलब फिर फ्लो जाके- चार्ट बनाएगा। हाँ, फ्लो चार्ट बनाएंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स होगा उसका डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और उसके बाद कोडिंग करेंगे, कोडिंग को रन करेंगे अपना सिस्टम में, फिर और एक सिस्टम में पूरा टेस्ट करेंगे,
उसके बाद आप उनको अलाउ करो पब्लिश करने के लिए। जब तक आपका कोडिंग, डिजाइनिंग और Testing. प्रोग्राम टेस्टिंग नहीं होता है और गाइडलाइन डॉक्यूमेंट नहीं बनता है, टिल दैट टाइम इट इज़ बेटर नॉट टू पब्लिश टू ए प्रोडक्शन सर्वर। ओके। ओके, अभी आप बोल रहे हो प्रोडक्शन को अपडेट हो गया, क्लाइंट भी यूज़ कर रहा है, बट उस टाइम कुछ डॉक्यूमेंट नहीं बना है, तो ये थोड़ा ठीक नहीं हुआ है। मतलब आपका जो भी अपडेट हो गया है उसका कुछ डॉक्यूमेंट अभी तक बना नहीं है। अभी डॉक्यूमेंट, टेक्निकल डॉक्यूमेंट और ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट ओके। और यूजर का डॉक्यूमेंट, 3 टाइप का डॉक्यूमेंट आपको रखना चाहिए। टेक्निकल डॉक्यूमेंट। टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो क्या होता है ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्रोग्राम उन्होंने बनाया है वो प्रोग्राम का टेक्निकल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ओके। कौन सा लैंग्वेज में प्रोग्राम किया, क्या क्या कंपोनेंट मॉड्यूल बनाया, क्या आर्किटेक्चर है, क्या डिजाइन है, उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, टेक्निकल Correct. डॉक्यूमेंट। उसके बाद यूजर डॉक्यूमेंट, मतलब यूजर को कैसे दिखेगा, यूजर इंटरफेस कैसे दिखेगा, यूजर कैसे करेगा, क्या क्लिक करने किधर जाएगा, उसका डॉक्यूमेंट। फिर ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट जो फाइनली कैसे ऑपरेशन होगा, उसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट को भी आपको बनाना चाहिए। ये कॉन्फ़िगरेशन करे तो ये चलेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं करे तो नहीं चलेगा। ओके। और डेटाबेस जो बनता है, डेटाबेस होता है तो उसका डेटाबेस का डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, डेटाबेस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का एप्लीकेशन कौन सा मॉड्यूल कौन सा फाइल के साथ लिंक है उसका भी डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। ये कुछ चीज़ है जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आता है, ये आपको मेंटेन करने का बहुत ज़रूरी है। आपने किसी को प्रोग्राम बनाने के लिए आउटसोर्स किया है तो आप उनको ज़रूर मांगिए कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट चाहिए along with the whatever program you are receiving from them, so that if some, and even if you are doing some team member of a project who is starting to develop or write code, before writing code or before doing anything, ask them to first make the document, design document, program document. Let them first make the document, then release the code to the testing server, verify it. If it works and if it is as per the requirement document, it is working, check whether the programs, what it has been developed and what it was designed and everything is correct or not, then only allow them to publish it. अभी एक सर्वर में टोटल एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है। अभी मान लीजिए दूसरा सर्वर में मैं चेंज होने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। वाई सर्वर में के अंदर एप्लीकेशन लेके जा रहा हूँ, तो इसके अंदर कुछ एप्लीकेशन का कुछ प्रॉब्लम आएगा, कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा। जब एक सर्वर आप ए एप्लीकेशन सर्वर में अभी रन होता है, यू वांट टू माइग्रेट इट टू ए बी सर्वर, तो पहले जो भी रिक्वायरमेंट था सर्वर का सेटिंग करने का, कॉन्फ़िगरेशन उसको पहले चेक करके वो दूसरा सर्वर इसी तरह का बनाना है। उसके बाद उसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, मीन्स डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन, मेल कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा फाइल लोकेशन कॉन्फ़िगरेशन, वो सब थोड़ा चेक करके सेम वे देन यू कैन जस्ट ट्रांसफर द फाइल्स एंड दैट शुड बी वर्किंग स्मूथ। ओके, मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल्सो। अच्छा, और एक भी चैलेंजेस है, मान लीजिए बहुत ओल्ड वर्जन में कुछ कोड हुआ, अभी वाई वर्जन के जा रहे हैं, एग्जांपल फॉर एज़्योर बाय AWS में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम वो जो कोड सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये जो एक चैलेंजेस आता है, ये क्यों होता है? तो वही है, देखिए जो भी कोड आपने प्रोग्रामिंग बनाते हो तो एट द पॉइंट ऑफ प्रोग्रामिंग जो भी उसका एनवायरनमेंट है, मतलब सर्वर का एनवायरनमेंट है, उसको यू हैव टू हैव द डॉक्यूमेंट ऑन दैट। व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ द सर्वर, व्हाट इज द सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, व्हिच इज द प्लेटफॉर्म, which is the version of the server software or component which is being used for the development and which is required to be used for the production. ये जो configuration के अंदर वो आपको नोट करना पड़ेगा, और when you deploy it on either on Azure or AWS, wherever, you have to make sure that
the server is having the same software components and same versions. So, and any libraries or any dependent things, modules are there. Otherwise, it may malfunction or it may throw up the errors. If you have to upgrade, then you have to check for the particular programming language or model or library which has changed with the upgradation, and what required changes has to be done. That has to be done in the program code. ओके, समझ गए. सपोज मान लीजिए सर्वर के अंदर और एक जो चैलेंजेस जो काम हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी एक एप्लीकेशन के अंदर 1 लाख डेटा आ गया. तो 1 लाख डेटा उसके अंदर है, कस्टमर का डेटा, और वो लाइव है. अभी जो सर्च करने के टाइम स्लो क्यों हो जाता है? इतना सारा डेटा होने की वजह से, पर डेटा के कहाँ पे रखना चाहिए, क्या एक कंटेनर बोल के जस्ट प्रीवियस हम लोग बात कर रहे थे, ये क्या है? ये थोड़ा आप एक्सप्लेन करने से बहुत अच्छा होता है. अब दो चीज़ इधर बात की है अभी. एक तो सर्च क्यों स्लो हो जाता है ज़्यादा डाटा जब आने से, तो उसका मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ. डाटा जो भी आपका जितना भी आता है वो सब इट डिपेंड्स वेयर इट इज़ स्टोर्ड. ओके, कहाँ पे आप डाटा को रखते हो. ओके, यूजुअली पीपल विल पुट इट ऑन अ डेटाबेस सर्वर. और डेटाबेस सर्वर में वो सर्च जब क्वेरी करते हैं तो सर्च क्वेरी डेटाबेस के ऊपर रन होता है, क्वेरी होकर रिजल्ट आता है. स्लो हो जाने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं. ओके, और आपका ज़्यादा डेटाबेस आ गया तो उसको सर्च करने में टाइम लग रहा है या नहीं हो रहा है. उसका रीज़न है कि जैसे आपने एक किताब ले लिया, बड़े मोटे किताब ले लिए, उससे आपको कुछ ढूंढना है. मतलब आप कोई किसी चैप्टर में कुछ सेंटेंस पढ़ा था, उसको ढूंढना है. अभी आपको याद नहीं है वो कौन सा पेज में है, कौन सा चैप्टर में है, कौन सा पेज में है, वो याद नहीं. फिर ढूंढ के अभी बताएंगे. तो आप क्या करेंगे? इसे आपको पहले वो वर्ड को थोड़ा याद करेंगे, एक सेंटेंस कुछ याद करेंगे, फिर जाके आप देखेंगे वो कौन सा पेज में हो सकता है या कुछ एजेंडा, जैसे बुक का एजेंडा. तो आप जाएंगे कि बुक का आपको पता चल गया कि ये चैप्टर में कुछ है, तो आप जाएंगे बुक का कंटेंट में, जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट में, ये कौन से चैप्टर में हो जाएंगे. फिर उसमें पेज जाएंगे, फिर बुक का पेज में जाके उधर मिलेगा, चलेगा. यदि एक एक पेज जाके देखेंगे तो टाइम लगेगा. ओके, तो कंप्यूटर का जो सर्च है, जो डेटाबेस का सर्च होता है, वो भी इसी तरह का कुछ लॉजिक में चलता है. उसका लॉजिक भी है, आपका जितना भी डाटा है वो सारे रिकॉर्ड्स एक एक रिकॉर्ड स्टोर होकर रहता है. ओके, और हर एक में कुछ कंटेंट रहता है. ओके, अभी इसको सर्च करने के लिए जो सर्च होता है, इंटरनली जो बाइनरी सर्च होता है, उसका जो सर्च होता है, बहुत सारे लॉजिक है. किस तरह का सर्च करने से सर्च फास्टर होगा. ओके, वो आपका जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं उनको क्या प्रोग्रामिंग डाले हैं वो डिपेंड करता है. अभी वो लिखे होंगे कि भाई एक एक रिकॉर्ड जाके ढूंढ के सर्च करो, तो लाख रिकॉर्ड हो गया तो ज़्यादा टाइम लगेगा. ओके, और वो सर्च लॉजिक लिखेंगे दूसरा कि पहले डिफरेंट लॉजिक है जो डिवाइड एंड सर्च है. मतलब ये दो डिवाइड कर दिए बाइनरी, मतलब 50-50-50, फिर उसमें देखो ऐसे करके सर्च होता है. बहुत सारे सर्च हैं. और एक सर्च है इंडेक्स सर्च. ओके, इंडेक्स सर्च, इंडेक्सिंग. ठीक है, यूजुअली डेटाबेस में इंडेक्सिंग यूज होता है. और इंडेक्सिंग ऐसे होता है कि जैसे बुक का इंडेक्स कीवर्ड बना ले, वो पेज में, वो रिकॉर्ड में जाओ. तो इस तरह का डेटाबेस में जब डाटा लोड होता है, आपका डेटाबेस में आपका एक ऑप्शन है, आप डेटाबेस का एक टेबल को जिसमें डाटा रहता है उसको आप इंडेक्स करके रख सकते हो. ये कॉलम है या टेबल है, ये फील्ड है जिसमें इंडेक्स हो जाता है, सर्च हो जाता है. और डेटाबेस में एक चीज़ है कि जो भी रिकॉर्ड्स होता है उसका एक आईडी होता है. आईडी मीन्स इज ए नंबर ओनली. सो देखिए पेज नंबर, और उसके साथ कीवर्ड होता है जो इंडेक्स का, जो भी फील्ड का, और एक फील्ड का, दूसरा फील्ड का कीवर्ड होगा. तो वो इंडेक्स आप बिल्ड करके डेटाबेस में रखते हो. और आप जब क्वेरी करते हो, इफ़ यू आर यूजिंग द इंडेक्स, द प्रोग्रामर मस्ट नो दैट वट एवर प्रोग्राम हैज राइट और रिटन फॉर सर्च, इट मस्ट बी यूजिंग द इंडेक्स ऑफ द डेटाबेस. इंडेक्स यूज़ करेगा तो सर्च फास्टर रहेगा. इंडेक्स नहीं यूज़ होता है तो स्लो होगा. ओके, और
कभी जब जैसे जैसे आपने बताया कि डेटाबेस का रिकॉर्ड बढ़ गया, मतलब इंक्रीज हो गया, और उसको कल बोलते हैं कि डेटाबेस भी अपने आप इंडेक्सिंग अपने आप करेगा। मतलब पहले जब डेटाबेस हमने डाले थे 10 रिकॉर्ड थे, उसका हमने इंडेक्सिंग कर दिए थे। कल डेटाबेस इंक्रीज होके 100 रिकॉर्ड हो गया, लाख रिकॉर्ड हो गया। तो आफ्टर एनी database changes has happened, the database also to be re-indexed. Okay. The index should be rebuilt so that if somebody is searching, it can use the index and do a faster query result. So एक चीज़ तो है कि आपको database, you have to tune the database to make and proper maintenance of the indexes, and if they are dynamically indexed, then it is well and good. Most of the databases support that indexing. There are various types of indexing and search. Programmers who are writing the program for the search, they need to use it so the search is faster. Okay. And there are many other ways to do the search faster, which can be discussed in depth in the later programming things. और एक ये बात के ऊपर डेटाबेस के ऊपर जो बात हो रहा है, और एक माइंड में डाउट आया। जो डाउट है, मान लीजिए जो हैकर है वो हैक कर लेते हैं, तो बेसिक क्या करने से हैक करने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगा? ऐसा कुछ एक दो। देखिए, हैकर जो है हैक कर लेते हैं, मतलब क्या हैक कर लेते हैं? पहले आप डेटाबेस का इंफॉर्मेशन, डेटाबेस का इंफॉर्मेशन, अभी डेटाबेस का इंफॉर्मेशन जो आप स्टोर करते हैं, पहले तो डेटाबेस को कैसे एक्सेस करेंगे उसका इंफॉर्मेशन को आप सिक्योर कीजिएगा। ओके। सेकेंड थिंग इज डेटाबेस का लॉक या की जो भी है उसको मिल गया, यदि भी वो अंदर घुस गया डेटाबेस में, आपके डेटाबेस के जो इंफॉर्मेशन है वो यदि सिक्योर्ड है, मतलब इफ़ यू वांट टू सिक्योर इट, यू स्टोर इट इन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट। इनक्रिप्टेड जो वो दिखेगा लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि आप डेटाबेस का जो डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, जो क्रिटिकल है, जो आपको कॉन्फिडेंशियल है, आप उसको एनक्रिप्ट करके रखो, सो दैट कोई भी डेटाबेस को हैक करे या उसको लग भी जाए देखने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यू नीड नॉट वरी। और एक चीज़ है, बेसिक्स जो भी डाटा आप कम्युनिकेट करते हो क्लाइंट से सर्वर तक या सर्वर के अंदर, उसको सिक्योर फॉर्मेट में ट्रांसमिट कीजिए। सिक्योर फॉर्मेट, हाँ, तो इसका एक प्रोटोकॉल होता है HTTPS प्रोटोकॉल। सो इफ़ यू ट्रांसफर योर डाटा फ्रॉम योर क्लाइंट टू ब्राउज़र, उसके बीच में कोई भी डाटा कोई हैक करने की कोशिश करता है तो उसको एनक्रिप्टेड डाटा मिलता है, तो उसको वो समझ में नहीं आएगा। इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू क्रैक। इफ़ यू आर ट्रांसफरिंग योर डाटा इन इनसिक्योर फॉर्मेट, लाइक नॉर्मल HTTP प्रोटोकॉल में जाते हो, तो हैकर्स को दिख जाता है डाटा, तो वो हैक कर सकते हैं। If the data is not stored in the database in a encrypted format, then easily anybody who has access to database knows that this is your name, this is your whatever information you are open. So it is best practice first to transfer data from this client to the server in a secure channel, HTTPS, and second is whatever data you are storing on database, confidential information, please store it in an encrypted format. There are a lot of encryption tools, logic is available, and anybody can use that to store the data in encrypted format. जो कंटेनर बोल के जो क्या बात है, कंटेनर क्या है? Container is a server component. It is a part of server. Today you are using desktop systems, then you had server systems, I told you, and people used to use standalone systems, and one server means one system. Okay, so next things changed. People wanted to use one physical system to run multiple application servers or servers. Okay, so that also was possible. One server and you run multiple servers within that. One physical system, multiple software servers. Okay. Now, when that happened, the hardware resource of the server was shared between the software server components.
So now what happened is the servers, when the shared component was there, if once client server running on the same hardware is taking more hardware resources like computing or RAM, it was affecting the other client's application which is running on the same system. Okay. So there was overlapping. Though he has not subscribed to that much resources, and it was very difficult to allocate the virtualization of the physical hardware. So then it started how we can do that. So result is that it came with like we will create virtual system. Right, sir. So now you will find lot of VM, virtual machines. Okay. One physical system, it is being divided by software to create virtual machines. Means one physical system, one OS is there, but within that they are creating multiple virtual machines. Means again virtual machine means it will have its own OS, one application. Okay. It will not interact with the other. Like one physical system you are having, you can create multiple virtual machines. Then next change, within the virtual machine also I have to run multiple applications. Okay. And if I run multiple applications, then again resources of that VM are being shared. Sometimes it overlaps, sometimes it affects. So I need a separate walled partition so that it is clear. Okay. And I need to run multiple applications without interfering with each other. So then came container. Okay. So container is like another small box Box. within a virtual machine, and within that virtual box you can run another independent application. It's like you have a room, you have a cupboard, okay, and you have many shelves in that. Okay. Okay. So containers are like small boxes placed within the big cupboard, and each of the box runs independent applications and they communicate through the network to the main application. Okay. So it doesn't interact with that directly, but they can connect the result to the main server. Okay. So separate applications you can run on various containers. So it's like room, inside that you have cupboards, and inside the cupboards you have small boxes piled up. Each box will run one application or one storage you keeping. Similarly here also one physical machine, inside that you have multiple virtual machines. In virtual machines you can have multiple containers. Each container can run one application or one process and it is independent. तो यहाँ पे मेरा जो बात है, हम लोग को जो कन्वर्सेशन है, जो कोई भी बेसिक जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बेसिक्स नॉलेज, जो सर्वर क्या है, हम लोग सर्वर का इतना डीप डेफिनेशन में नहीं गया, बट आप बहुत ही छोटा उस प्रोजेक्ट के साथ रिलेट करके एग्जाम्पल के साथ आप सर्वर का जो एक्टिविटी है आप शेयर किया। उसको साथ साथ हम लोग थोड़ा एप्लीकेशन के लिए आप गिटलैब के बारे में थोड़ा कुछ हम लोग टच किया। उसको साथ साथ कंटेनर के लिए आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो मेरा हिसाब से आज की जो लर्निंग है बहुत ही बेटर है, और ये कोई भी एक बिजनेस ओनर का इतना थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जानना चाहिए। एक्चुअली हम लोग को जो चैनल करना के एक ही मोटिव है, हम लोग को डोमेन है ओनली फॉर वेरिफिकेशन डोमेन है, ठीक है। तो आईटी कंपनी, अदर्स कंपनी जो एम्प्लॉय है, आपको पता है हम लोग काफ़ी सालों से हम लोग वेरिफिकेशन सर्विस दे रहे। हम लोग को अवेयरनेस का ऑब्जेक्ट की रख के, हम लोग को गोल रख के, हम लोग डेली बेसिस कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उसको अंदर आप भी यहाँ पे शामिल हुआ, तो हम लोग को जो भी देख रहे हैं द फ्यूचर में देखेगा। तो मेरा इतना बिलीव है, कॉन्फिडेंस है, हम लोग को चैनल के थ्रू से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो यदि हो सकता है तो हम लोग को चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। किसी को यदि फ्रेंड होगा लर्निंग के लिए शेयर भी कर सकता है।
तो आप इस बारे में थोड़ा सा कुछ बात बोलेगा सर? आपका जो भी अभी सर्विस आप स्टार्ट किए हैं या कर रहे हैं अभी, या जो आप करना चाहते हैं, इज ऑल रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन. करेक्ट सर. एंड स्पेशली आपका जो वेरिफिकेशन सर्विस है, पब्लिक का जो भी कस्टमर है आपका, उनका बहुत सारे वाइटल इन्फॉर्मेशन यू आर हैंडलिंग. So most important thing is data security and privacy. So basic thing is that data which you are storing on the server needs to be encrypted with certain password or anything which only known to the owner of the content. So means user. Nobody else should be knowing that. And that should be, even you can make it more secure by one-way encryption, so that there is no way of decrypting that and seeing it what exactly the original content was. Only once somebody types the initial encrypted password, they can only view the content, because you are handling very sensitive information from data point of view, information point of view, for data security. And if you are maintaining, I am sure the users will be happy to trust Right sir. your verification service, and even if their data is lost, they can also get it back with if they remember the password. Right sir. Okay, so I think that should be good enough for your clients and customers to take it forward with your service. तो थैंक यू सर. Thank you, Ganesh ji. Thank you.